حیدرآباد میں ایسوسی ایشن آف مسلم پروفیشنلز کی جانب سے نیشنل ٹیلنٹ سرچ 2025 کے پوسٹر کا اجرا عمل میں آیا۔ اس موقع پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے مشترکہ طور پر پوسٹر کی نقاب کشائی کی۔ اس حوالے سے تقریب انور علوم ڈگری کالج ملپلی میں منعقد ہوئی۔ ٹیلنٹ سرچ امتحان دسمبر میں منعقد ہوگا، جس میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے لیے مجموعی طور پر 50 کروڑ روپے کی اسکالرشپ دی جائے گی۔ اس موقع پر AMP سے وابستہ سماجی تنظیموں اور ٹیچرز کو ان کی بہتر خدمات پر قومی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ AMP کے صدر عامر ادریسی نے کہا کہ تنظیم مسلمانوں میں تعلیمی انقلاب لانے کے لیے 25 سالہ ترقیاتی منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ اس موقع پر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے تعلیم کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ تقریب میں ڈاکٹر اوصاف سعید، تلنگانہ وقف بورڈ کے چیئرمین عظمت اللہ حسینی اور دیگر معززین کے علاوہ بڑی تعداد میں شرکاء موجود تھے۔ AMP کی جانب سے نیشنل ٹیلنٹ سرچ ہر سال پچھلے 5 سالوں سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ 6واں سال ہے جس کا لانچ پروگرام حیدرآباد کے انوار العلوم ڈگری کالج میں کیا گیا تھا۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب تھے، حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی اور بہت سارے دوسرے اہم ذمہ داران یہاں موجود تھے۔ ان کے ہاتھوں سے پوسٹر لانچ کیا گیا ہے اور 13 دسمبر کو یہ ایگزامینیشن پورے ملک میں ایک ہی دن میں ایک ساتھ آرگنائز کیا جائے گا۔ تقریباً 2 لاکھ بچے اس پروگرام میں شرکت کریں گے اور 1200 سے زیادہ ایگزام سینٹرز ہم پورے ملک کے 400 ڈسٹرکٹس میں بنانے جا رہے ہیں۔ یہ اپنی طرز کا، اپنی نوعیت کا ہندوستان کا سب سے بڑا ٹیلنٹ سر، یہ سب سے بڑا ایگزامینیشن آپ کہہ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سب لوگ دعا کریں، اس کو پروموٹ کرنے میں مدد کریں کہ کمیونٹی کا ہر بچہ، ہر گھر، ہر انسٹیٹیوشن اور ہر آرگنائزیشن اس کمپٹیشن کا حصہ بنے۔ بہت اچھا پروگرام رہا، بہت حوصلہ افزا پروگرام رہا اور آج کل مسلمانوں میں ایسے ہی پروگراموں کی اور کاموں کی ضرورت ہے۔ اس وقت مسلمان جتنے مسائل سے دوچار ہیں ان کے حل کے لیے سب سے اہم چیز تعلیم کا حاصل کرنا ہے، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ اسی سے روزگار وابستہ ہے، اسی کے ذریعے اس ملک میں ہم باعزت زندگی گزار سکتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ ادارہ اس کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ ہم لوگ بہت متاثر ہوئے، ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کی یہ کوششیں کامیاب ہوں۔ مجھے ہائر ایجوکیشن کیٹیگری میں ایوارڈ ملا ہے۔ مجھے بہت گرو محسوس ہو رہا ہے۔ آئی ایم فیلنگ سو پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف سچ اے ونڈرفل ایونٹ۔ ایجوکیشن میں آگے بڑھنا بہت بڑی بات ہے۔ بچوں کو ٹرین کرنا، پڑھانا اس بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اور اس کے لیے مجھے آنر کیا گیا ہے۔ میں عامر ادریسی سر کی بہت شکر گزار ہوں جو مجھے نامینیٹ کیے ہیں، پوری AMP ٹیم جنہوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ تو الحمدللہ دار ارقم ایجوکیشن چیریٹیبل ٹرسٹ پونے کو بھی جو ہے تو نیشنل ایکسلنٹ ایوارڈ اور بیسٹ NGO آف مہاراشٹر کے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ تو ہم AMP کا بھی اس موقع پر مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے ملک کے موجودہ حالات اور مسلمانوں کے حوالے سے منصف TV سے بات کی۔ ناظرین آداب، ہمارے ساتھ انڈیا اسلامک سینٹر لکھنؤ کے صدر اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن جناب خالد رشید فرنگی محلی صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے ہم بات کرتے ہیں ملک کے موجودہ حالات پر، SIR پر اور بلڈوزر کارروائی پر۔ اس کے علاوہ بہت سے موضوع کا ہم احاطہ کریں گے۔ خالد رشید محلی صاحب، مولانا صاحب بہت بہت آپ کا استقبال۔ شکریہ۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آج ملک کے جو موجودہ حالات ہیں، ایسے حالات میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے جبکہ UP حکومت خاص کر اگر دیکھا جائے تو بلڈوزر کارروائیوں پر اتر آئی ہے؟ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری یہی ہے جس کے تحت کہ ہم لوگ یہاں بھی حیدرآباد آئے کہ مسلمان اپنے بچوں کو بیسٹ پاسبل ایجوکیشن اور کوالٹی ایجوکیشن کو انشور کریں، جس میں جب تک ہمارے پاس بہتر سے بہتر ایجوکیشن نہیں ہوگی تب تک جو ہم لوگوں کے ملک کے کانسٹیٹیوشن اور آئین نے ہم لوگوں کو جو حقوق دیے ہیں وہ ہم لوگ حقوق حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور جب لا علمی کی وجہ سے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو لہٰذا جو بھی قانونی راستے ہیں وہ
तमाम चीज़ों में अपनाए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अपनाए जाएंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने बच्चों को बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन ज़रूर इंश्योर करें। जी, खासकर अभी अवैध कहकर मस्जिद और मदरसों पे बात लाई जा रही है, मदरसों को अवैध कह के बंद कराने की बात कराई जा रही है, इस पर मुस्लिम उलमाओं का क्या रुख है? नहीं, मदरसों के सिलसिले में भी बातचीत चल रही है, हुकूमत से बात भी हुई है और हम लोग यही चाहते हैं कि वहाँ पे तालीम का सिलसिला जारी रहे और ऐसा रास्ता निकले जिससे कि जो कानूनी दिक्कतें हैं वो भी दूर हों और वहाँ पे बच्चों को जो तालीम दी जा रही है उसमें कोई रुकावट ना आए। जी, आई लव मोहम्मद मुहिम बड़े ज़ोर शोर से सारे मुल्क में जारी है, लेकिन इसको लेकर बड़ा ही यूपी में बवाल मचा है और बरेली के मामले के बाद मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को भी हिरासत में लिया गया है, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? नहीं, हम शुरू से बात हम लोग कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपने ईमान का जुज़ है, अपने ईमान का हिस्सा है, लेकिन उसको इस तरीके से बैनर्स पे लिख करके और सड़कों पर चलना मुनासिब नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेने के भी आदाब हुआ करते हैं और आप लोग देख रहे हैं कि बैनर्स पे किस तरीके से बग़ैर किसी दुरुस्त के लिखा हुआ है। तो लिहाजा हम लोगों की सबसे यही अपील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उस पर हमें अमल करके अपनी मोहब्बत का इजहार करना है, हर तरीके से अमन अमान कायम रखना है, अपने बच्चों को आला से आला तालीम देनी है, बच्चों का अदब लिहाज छोटों से प्यार मोहब्बत करना है और यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं और इन्हीं तालीमात पर हम सबको अमल करना चाहिए। जी मौलाना, वक्फ अमेंडमेंट जो कानून आया है इसमें बार बार बोर्ड की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये नाइंसाफ़ी हो रही है, मुदाखलत हो रही है, इससे निपटने के लिए बोर्ड ने क्या हिकमत अमली और स्ट्रेटजी अपनाई है? ये आप सब जानते हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 बना उस सिलसिले में जेपीसी के सामने ऑलरेडी पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी पूरी बात रखी। जब वहाँ से कोई कामयाबी नहीं मिली तो ऑलरेडी बोर्ड ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरिम ऑर्डर आया है, उसमें थोड़ी बहुत रिलीफ मिला है, लेकिन अभी फाइनल जजमेंट का इंतज़ार है और हम लोगों को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसमें हम लोग को बड़ा रिलीफ मिलेगा। जी मौलाना, का आखिरी सवाल, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट का बिहार में हुआ है जिस पे काफ़ी हिंदुस्तान भर में बवाल मचा है, ऐसे में अब इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि सारे हिंदुस्तान में इसको लागू किया जाएगा, तो ऐसे में इस SIR के ताल्लुक़ से कितना नुकसान कौम को हो सकता है या मुसलमानों को हो सकता है या बिरादरान वतन को हो सकता है, इस पर आप कुछ रोशनी डालें। नहीं, हम लोगों ने मुसलमानों से की मुख्तलिफ तंजीमें भी इस बात की कोशिश कर रही हैं कि जो भी इस सिलसिले में डॉक्यूमेंट्स कानूनी तौर पर दरकार हैं वो हर फैमिली के पास और हर मुसलमान के पास वो मौजूद होने चाहिए, जैसे कि अगर जिससे कि अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई होती है तो उसमें हम लोगों को कानूनी राहत मिल सके और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है आपका नाम कानूनी तौर पर वोटर लिस्ट से कोई नहीं काट सकता। जी, मुंसिफ टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना। शुक्रिया। ये थे मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी महली जो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोशनी डाल रहे थे। इनका कहना है कि अगर हमें अपने हिंदुस्तान में हुकूक़ को हासिल करना है तो सबसे पहले यही कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ तालीम के निज़ाम को मजबूत किया जाए, हमारी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा किया जाए और तालीम को ज़ेवर से आरास्ता होने के बाद में अपने हकूक़ की लड़ाई हम आसानी से लड़ सकते हैं। और SIR के ताल्लुक़ से भी उन्होंने कहा कि तमाम मुसलमान अपने डॉक्यूमेंट्स को साथ रखें और वोटर लिस्ट में अपना नाम ज़रूर दर्ज कराएं, कहीं भी कोई चूक होने से बचें। और साथ में जो भी इलीगल मामलात हैं, जो इलीगल कह के मसाजिद और मदरसों को ढेर करने की कोशिशें की जा रही हैं, इसके लिए बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज से कानूनी और जमहूरी दायरे में रहकर लड़ाई मुसलमान लड़ रहे हैं और ये लड़ाई जमहूरी अंदाज में लड़ते रहेंगे। और जहाँ तक वक्फ अमेंडमेंट बिल का मामला है, इस मामले को लेकर भी इस एक्ट के नाफिज होने के बाद में जो नुकसानात हो रहे हैं वक्फ बोर्ड को या वक्फ इमलाक को, इस पर मुस्लिम फैसला बोर्ड अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है। एहतजाज एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ कानूनी कोशिशें भी जारी हैं और यही इस कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी केस की समातें जा रही हैं और ये पूरी ताकत के साथ बोर्ड इस कोशिश में लगा हुआ है कि इसमें कोई मुदाखलत न हो। और यही सब बातों पर वो रोशनी डाल रहे थे और मुसलमानों को ये पैगाम दे रहे थे कि सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें और एजुकेशन को अपने लिए लाजमी कर लें और इसी तरह से अपने हुकूक़ की आसानी के लिए आप कोशिश करते रहेंगे। मैं मोहम्मद सगीरुद्दीन, मुंसिफ टीवी के लिए हैदराबाद।
कड़पा जिले के प्रोदुटूर में सुपर जीएसटी सुपर सेविंग रैली का एहतमाम किया गया। रैली से खिताब करते हुए हुक्मरान इत्तेहाद के कायदीन ने कहा कि किसान की मदद ही मुल्क की तरक्की का रास्ता है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू किसानों की मदद को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मखलूत हुकूमत किसानों की भलाई के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। మరి వ్యవసాయ పనిముట్ల మీద ట్రాక్టరు గొర్రు గుంటగా అదే మాదిరిగా పురుగుల మందుల మీద కూడా బాగా జీఎస్టీ వలన రేట్లు తగ్గి రైతులకు అందుబాటులోకి వచ్చినాయి। ఈ యొక్క రైతులకు ఈ విషయం తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రైతులందరినీ చైతన్యవంతులు చేయండి, ఈ మాదిరిగా రేట్లు తగ్గినాయి కాబట్టి మీరందరూ కూడా ఈ పట్టణాలలో భారీ సంఖ్యలో ర్యాలీ ద్వారా ప్రజలకు ఈ విషయం తెలియజేయాలని చెప్పడం జరిగింది। దాంట్లో భాగంగానే అగ్రికల్చర్ అధికారులు అందరి ట్రాక్టర్ల ఓనర్లకు అందరూ अनामया जिले के रायचोटी कलेक्ट्रेट के अहाते में मेडिकल अफसरान का एहतजाज 8वें दिन में दाखिल हो गया। इस मौके पर मेडिकल अफसरान ने इल्जाम आयद किया कि दरीना मसाइल और आला हुक्काम की जानिब से गुज़िश्ता साल किए गए वादों में से किसी एक पर भी आज तक अमल नहीं किया गया। उन्होंने अपने मुतालबात दोहराते हुए कहा कि मेडिकल अफसरान के साथ इंसाफ किया जाए। उन्होंने कहा कि जो कई बरसों से जो एक ही ओहदे पर फायज है उन्हें तरक्की दी जाए। పదహైదు సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్న వైద్యులకు ఒక్క పోస్టింగ్ అంటే ఒక్క ప్రమోషన్ కూడా రాకుండా ఉండడం అనేది తీవ్రమైన అన్యాయం అని కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి 6 సంవత్సరాలు 12 సంవత్సరాలు డిప్యూటీ సివిల్ సర్జన్ 6 సంవత్సరాలు 12 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి సివిల్ సర్జన్గా ప్రమోషన్స్ ఇచ్చి ఆర్థికమైనటువంటి అన్ని లబ్ధులు చేకూర్చాలని మా రెండవ డిమాండ్। మూడవ డిమాండ్ వచ్చి ట్రైబల్ ఏరియాలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళకి 50% ఆఫ్ ద బేసిక్ వాళ్ళకి ట్రైబల్ అలయన్స్ కింద మంజూరు చేయాలి। 2020లో రిక్రూట్ అయినటువంటి వైద్యులకు పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి 2 నేషనల్ ఇంక్రిమెంట్లు యుద్ధ ప్రాతిపదికన రిలీజ్ చేసి వాళ్ళ యొక్క అన్యాయాన్ని మీరు వెంటనే న్యాయం చేయాలి వాటి। మూడోది అర్బన్లో పనిచేసే వాళ్ళకి चेन्नई में बाएं बाजू की जमातों ने आरएसएस के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुल्क में फिरका वाराना सियासत, जमहूरी इदारों पर हमले और आईनी इक़दार को कमजोर करने के खिलाफ आवाज बुलंद करना मुजाहरे का मकसद था। उन मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए रखे थे जिन पर जमहूरियत बचाओ आइन का तहफ़्फ़ुज़ करो और फिरका वारादियत मुर्दाबाद जैसे नारे दर्ज थे। मुजाहरे के दौरान बाएं बाजू के लीडरों ने कहा कि आरएसएस मुल्क के जमहूरी ढांचे को नुकसान पहुंचा रही है और समाजी हम आहंगी को कमजोर कर रही है। उनका कहना था कि हुकूमत आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है जिससे अक़लियतों, मजदूरों, किसानों और तलबा के हुकूक खतरे में पड़ गए हैं। शहर कड़पा से खबर है, रोविंद नगर में आस्ताना गौस सरमत कादरी रहमतुल्लाह अलैह पर हज़रत अब्दुल्ला खादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के 11वीं शरीफ का एहतमाम किया गया। इस मौके पर आस्ताने गौस सरमत कादरी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादे नशीन इलियास बादशाह कादरी ने खुसूसी दुआ कराई। मुल्क और मिल्लत की सलामती, आलम इस्लाम में अमन और रियासत आंध्र प्रदेश की तरक्की व खुशहाली के लिए दुआ की गई। तकरीब में अक़ीदतमंदों और मुरीदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहर हैदराबाद के इलाके लोध घंटा तिरुमलगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। एक साइकिल शॉप में आग भड़क उठी। 3 फायर इंजन यहां आग बुझाने पहुंचे थे और फौरी कार्रवाई करके आग पर काबू पाया। साइकिल शॉप में मौजूद तमाम नई साइकिलें जलकर खाकिस्तान हो गई जबकि आग आसपास की दुकानों तक फैल गई, लेकिन खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने आग लगने के सबब की तहकीकात शुरू कर दी है। तमिलनाडु के जिला डेंडिगल समेत कई इलाकों में शदीद बारिश के बाइस आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। मौसलाधार बारिश की वजह से मुतादिद मुकामात पर पानी जमा हो गया है जिसके बाइस लोगों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
सड़कों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है और रोजमर्रा की सरगर्मियां भी रुक गई हैं। इंतजामिया की जानिब से निकासी आप के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, ताहम मुसलसिल बारिश के बाइस हालात में फौरी बेहतरी के आसार नजर नहीं आ रहे।